Am I audible to both of you? Yes, ma'am. Uh, just a minute. Is the screen visible? Is the No, screen ma'am. visible? Nothing is visible. No, ma'am. Okay. No, मैम आपने मैम स्क्रीन शेयर करी है. Just a minute. Just a minute. Why is this not now? Someone, am I audible? Yes, ma'am. Can you see the screen? Yes, ma'am. Okay. So first of all, let's discuss today's test. Uh, one of you haven't given the test, okay? Since you are absent the previous day, isn't it? Yes, ma'am. Okay. So I will come back to you later. First, Charu, you haven't done the numerical. Second one, question number 2. Ma'am, I haven't done the second and the third one because I couldn't get the answer for that. For those. You couldn't. It's very easy. It's from that relation. F is equal to ILB. F is equal to ILB sin theta. Okay, but I didn't understand. I went for that only, but I didn't understand the units that were used. For example, the some SI units were used, but I didn't recognize those. Yes, but actually you had to just convert all of them into SI units. Okay, we will discuss about the questions once a few more people join. Have anyone else given the test? No one has submitted it. Hmm. Okay. So first of all, discussing about the first question, it was entirely right. That is, what is the prime differences between electromagnet and permanent magnet? Okay. So yesterday, well, just a minute. Let Harshit. Okay, Harshit. Yes, ma'am. Yes, ma'am. In the previous class, we learned about electromagnets. That is, what are electromagnets and what are some of its advantages over permanent magnets? What are the difference between electromagnets and permanent magnets? We discussed about it in the previous class, and from that information, today the first question asked was what are the prime differences between an electromagnet and a permanent magnet, isn't it? So firstly, electromagnet. What is electromagnetism or electromagnet? It is generally seen that whenever electric current is passed through a wire or an iron or soft iron like material, it starts behaving like a magnet. Such kind of magnet is called electromagnet. Okay. Okay. Okay, ma'am. Okay, Okay, ma'am. so this is an electromagnet, and there are some. This is how an electromagnet is made, and there are some key differences from permanent magnets regarding electromagnets and permanent magnets. They have some prime differences. That is, in permanent magnets, you cannot turn off its magnetism. Okay, like you want them to behave in a certain way, it's behave as magnets, and you can turn them off. You cannot do that. Whereas with electromagnets, you can do that. You can just turn off the electricity, and its magnetism properties will go off. Okay. Then Okay, ma'am. these are the
prime 4 to 5 differences. Permanent magnets, they get weaker over time. Electromagnets, they don't lose their properties. Then permanent magnets, their poles cannot be changed. Like if you have a north pole and south pole, they will forever be the north pole and south pole. Whereas in electromagnets, you can just reverse the direction of the current, and the direction of and the direction of the poles will be reversed. Similarly, and the question and this fifth point, that is, permanent magnets do not need any external energy to exhibit their properties of magnetism. Okay. Whereas in electromagnets, they specifically need electrical energy to exhibit their properties of magnetism. ओके. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स किनको कहते हैं? अगर हम लोग को, अब हमने देखा कि सॉफ्ट आयरन जैसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, उनके अराउंड अगर हम लोग करंट पास करते हैं तो वो मैग्नेट्स जैसा बिहेव करने लगते हैं. ठीक है. तो इनको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोलते हैं. इनका बहुत यूज होता है, एमआरआई मशीन्स में यूज होता है, हेवी व्हीकल्स में यूज होता है, जनरेटर्स में यूज होता है, लाउड स्पीकर्स में यूज होता है, बहुत सारे यूजेस हैं इसके. ठीक है. अब इनके यूजेस के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया गया था लास्ट डे. अब आज थोड़ा फास्ट होगा. और इसका कुछ प्राइम डिफरेंस है परमानेंट मैग्नेट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. परमानेंट मैग्नेट्स को कभी भी हम लोग टर्न ऑफ कर नहीं कर सकते, वो मैग्नेट ही रहेगा. इलेक्ट्रोमैग्नेट में जैसे ही करंट ऑफ कर देंगे वो मैग्नेट नहीं रहेगा, वो सब आयरन बन जाएगा या फिर जो भी वायर है वो बन जाएगा. परमानेंट मैग्नेट्स वीक हो जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वीक ऐसा कुछ नहीं होता. परमानेंट मैग्नेट्स में नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में वो चेंज कर सकते हैं, करंट का डायरेक्शन बदल दो, चेंज हो जाएगा. और परमानेंट मैग्नेट्स को एक्सटर्नली किसी इलेक्ट्रिक या करंट इस सब की जरूरत नहीं है मैग्नेट जैसा बिहेव करने के लिए. जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में जब तक करंट नहीं जाएगा उसका मैग्नेटिज्म नहीं आएगा. ठीक है. ये सब कुछ थे प्राइम जो है डिफरेंसेस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट. और इसका कुछ यूजर्स डिटेल्ड यूजर्स है जो कि बाकी पीपीटी में, पिछले दिन का जो पीपीटी है उसमें मिल जाएगा, उसका रिकॉर्डिंग इस क्लास के बाद तीनों जो रिकॉर्डिंग्स है वो तीनों एक बार में अपलोड हो आएंगी. जस्ट अ मिनट. नेक्स्ट, फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड. उसके बाद है कि अगर हम लोग किसी भी चार्ज को, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसके वहां पे हम लोग चार्ज को घुसा दे रहे तो उसके एक वेलोसिटी से उसके अंदर अगर कोई ऐसे चार्ज घुसेगा तो फिर उसके अंदर उसके ऊपर एक फोर्स लगता है. उस फोर्स का मेजरमेंट हमें मिलता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी से. और जिसका और उसी के ऊपर था आज हमारा फिफ्थ न्यूमेरिकल, जिसमें कि F दिया हुआ था, V दिया हुआ था, B दिया हुआ था, हमें निकालना था Q. ओके. ऐसे ही होता है ये F इज इक्वल टू क्यू वी बी. और इसके बाद एक और रिलेशन आएगा, इन दोनों में से सिर्फ न्यूमेरिकल आता है. ठीक है. मतलब कि कोई भी एक मिसिंग होगा इस तरीके का. ओके. नेक्स्ट है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें ये बोलता है कि जैसे हम लोग लास्ट डे किए थे लेफ्ट हैंड रूल, इस तरीके से तीनों हमारे लेफ्ट हैंड में तीनों उंगलियों को, मतलब कि थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इन तीनों को अगर हम लोग एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली ऐसे रखेंगे तो फिर जो हमारा थंब होगा वो दिखाएगा फोर्स का डायरेक्शन. बीच वाला जो इंडेक्स वाला फिंगर जो होगा वो हमें दिखाएगा बी यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. और जो हमारा मिडिल फिंगर होगा वो हमें दिखाएगा करंट यानी आई का डायरेक्शन. ओके. इसको याद रखने का एक ऑर्डर सुन लो, एफ बी आई. याद है? थंब से शुरू करना है एफ फोर्स, बीच वाले में आएगा बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, और एकदम मिडिल फिंगर में आएगा आई यानी कि करंट.
इसके बाद हमने पढ़ा था डीसी मोटर। डीसी मोटर एक ऐसा डीसी मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका वर्किंग हमने पढ़ा था। और इसके कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में मैंने पूछा था कि स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का क्या फंक्शन होता है। इसका ये फंक्शन है कि ये कंटिन्यूअस एक ही डायरेक्शन में ताकि घूमे, ये इसलिए इसके डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन को चेंज करता है। चारू तुम्हारा आंसर मैंने देखा, उसमें बस एक छोटा सा लाइन याद ऐड कर लेना, व्हाट यू हैव रिटन in that, just add a little portion that is to ensure that the armature moves in same direction. Okay Okay, ma'am. Charu, Okay, ma'am. okay, just add that much to ensure. After that, whatever you have written, that is completely right. Just add this, it just enhances the quality of answer. You will get marks otherwise also, but still this enhances the quality of answer. Okay. Okay. Okay, so this was just a revision of previous class which Harshit has missed. So this was just a quick revision for him. So now let's move on to today's class. Okay. Today we will be learning about electromagnetic induction. So far what we have seen is around a current, like in Oersted experiment. What did we see in Oersted experiment? That whenever there is a okay, first of all, let me test you guys. How many of you can answer me what was Oersted's experiment? Yes, Charu? Yes? Yes, answer it. Ma'am, yeah. What was the question? Can you just repeat? What was Oersted's experiment? Right. According to the Oersted experiment, if current is passed through a through a conductor, then the magnetic field will be produced around it. Yes, earlier what we have seen or whatever we have learned is based on this fact that whenever current passes through a conductor or whenever current is passing, we have learned about what will be its magnetic fields, how are its magnetic lines of force. We have learned about those things. So now what we will try to learn is that what if there is a magnetic field, will there be any current in the circuit? Like we know that if there is a current in the circuit, there is a magnetic field. Now can there be the reverse, that if there is a magnetic field, we want to have a current in the circuit? Is this possible? That's what we are going to learn in electromagnetic induction. इससे पहले हम लोग क्या हमेशा पढ़ते, अब तक जितना पढ़ते आए हैं उसमें क्या था कि जब भी करंट पास हो रहा था या फिर करंट जा रहा था, तो हम लोग देख रहे थे कि पास में या एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था, है कि नहीं? ओर्स्टेड में मैंने क्या बोला कि एक ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट ये था कि करंट जा रहा है, पास में उन्होंने देखा कि एक मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है ना? तो अब हम लोग देखना चाह रहे हैं कि इसका रिवर्स पॉसिबल है क्या, कि एक मैग्नेटिक फील्ड है तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हम लोग सर्किट में करंट ला सकते हैं? मतलब कि सिर्फ बिना कोई बैटरी लगाए क्या हम लोग यहाँ पे करंट ला सकते हैं? सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे एक जगह पे। तो इस ऐसे सिचुएशन में हम लोग अगर करंट ला सकते हैं, उसी के बारे में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ओके, और इसके बाद है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये दो छोटे छोटे लॉज है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में ही। इसका डिटेल्स और भी पढ़ेंगे हम लोग 12th में। इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, अभी बस लॉज है। उसके बाद फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब तक हम लोग जो भी लेफ्ट हैंड रूल्स में पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज FBI, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इन सभी का राइट वर्जन है। कि बस इतना समझ लेना, राइट हैंड तभी आएगा जब इंड्यूस्ड करंट की बात आएगी। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगर कभी कंफ्यूजन हो कि कौन से केस पे कौन सा रूल लगेगा,
तो ये बात समझ लेना, राइट हैंड रूल हमेशा इंड्यूस्ड करंट के लिए लगता है। ओके, उसके बाद डायरेक्ट एसी एंड डीसी, उनके बीच का डिफरेंसेस, उन हमारे इंडिया में एसी का कुछ फीचर्स। देन एसी जनरेटर थैंकफुली आप लोग के सिलेबस से हट चुका है, खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन फिर भी थोड़ा पढ़ लेना। देन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, हमारे घर के जितने भी सर्किट्स हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। और फिर 3 मेन चीज है जिनका डेफिनेशन बहुत बार पूछा गया है, बहुत अच्छे, तीनों ही बहुत ही इजी है, अगर लिख सको तो बहुत मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, दैट इज शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग एंड फ्यूज। सो आगे बढ़ते हुए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सब देखा गया है, जैसे कि मैंने कहा कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का अगर किसी जगह पे है तो उस जगह पे हम लोग चाहते हैं कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी ला सके। अगर हम लोग मतलब कि कहीं पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, क्या वहां पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी लाया जा सकता है? तो उस वजह से क्या किया फैराडे ने, क्या किया, ऐसे एक सोलेनॉइड लिया और यहाँ पे एक मैग्नेट लाया। ठीक है, तो वहां पे इन्होंने आके मैग्नेट को रख दिया। देखा यहाँ पे जो ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है बोलो तो? व्हाट डज अ गैल्वेनोमीटर डू? It indicates the presence of current. Yes, it indicates the presence of current. Okay, so सबसे पहले फैराडे ने क्या किया, यहाँ पे लाके एक मैग्नेट को रख दिया। तो यहाँ पे एक मैग्नेट से क्रिएट हुआ मैग्नेटिक फील्ड हुआ, लेकिन यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन नहीं आया। ओके, मतलब डिफ्लेक्शन नहीं आया मतलब, डिफ्लेक्शन नहीं आया मतलब No current was passed. नो करंट वाज पास्ड। ओके, तो अब क्या हुआ, हमने ये करके इसको यहाँ से हटा लिया, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको हटाने गए तो देखा यहाँ पे हल्का सा ऐसे फ्लिकर हुआ, इधर उधर ये किया। जैसे इसको हम लोग हटाने गए यहाँ पे, तो जैसे ही हटाने गए तो इसको फिर वापस लाने गए, लेकिन फिर जैसे ही हम लोग देखे कि इधर पहले मान लो थोड़ा सा ऐसे डिफ्लेक्ट होके इधर आ गया था, अभी वो इधर आ गया, अभी फिर वापस इधर आ गया और फिर यहाँ पे आ गया। मतलब क्या है, जब भी इसको हम लोग दूर लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे हल्का सा, एकदम हल्का से, एक थोड़ा 1 सेकेंड से भी कम के लिए थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो रहा है। और जब भी हम लोग इसको वापस सामने ला रहे हैं तो यहाँ पे एक और उल्टा साइड में डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं बोलो तो? नहीं, कौन बोलेगा? कोई और बोलो। हितेश बोलो। यस मैम। बोलो कि क्या कंक्लूड कर सकते हैं इससे हम लोग? कुछ समझ में आया मैम अभी कि तक? कितना वोल्ट, क्या बोलो बोलो, कितनी मैग्नेट में पावर है? कितनी मैग्नेट में पावर है? अच्छा ठीक है, अभी तक जितना मैंने बोला समझ में आया? मैम मैं ज्वाइन ही अभी हुआ हूँ 5 मिनट पहले। अच्छा, 5 मिनट से जितना बोला उतना समझ में आया कुछ? हाँ वो तो आ गया। हाँ, 5 मिनट पहले तो ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है। ओके, हर्षित तुमको थोड़ा बहुत समझ में आया? यस मैम। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दोगे एक बार? कौन वाला? मैम ये जब वो मैग्नेट दूर लेके जाएगा तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब ये वाला, यही वाला पार्ट ना? ओके, यस मैम। चारू क्या कंक्लूड कर सकते हैं? व्हाट इज योर आंसर? व्हाट इज योर आंसर? चारू, व्हाट इज योर आंसर? कनेक्टेड है ये? यस, अरे लोअर हैंड, चलो छोड़ो आंसर। यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि मैग्नेट, मान लो हम फैराडे क्या चाहते थे, ये देखना चाहते थे कि किसी भी मैग्नेट के आसपास
फैराडे ये देखना चाहते थे कि अगर हम किसी भी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो फिर उसके अराउंड क्या हम लोग ये देख सकते हैं कि अब उसके अराउंड हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ला सकते हैं क्या? क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि अगर ओरस्टेड हमने देखा था कि अगर यहाँ पे मान लो एक करंट वायर है तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड आता है ना? तो हाँ, वो बस ये देखने वो बस ये देखना फैराडे ये देखना चाहते थे, ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे कि अगर हम लोग जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक आ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी आ सकता है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकता है। ये था उनका मेन मोटिव। ओके, तो उन्होंने यहाँ पे लाके एक मैग्नेट को रख दिया, तो यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हुई, ऐसे ऐसे लाइन्स हुआ, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, है ना? ये समझ में आया? यस मैम। आया समझ में? तो यहाँ पे यस मैम, आ गया। यहाँ पे एक सोलेनॉइड रखा और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर रख दिया। गैल्वेनोमीटर किस लिए? ताकि ये डिटेक्ट कर सके यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक करंट है, आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ये मैग्नेट रख दिया, इसको यहाँ पे रख दिया, ऐसे ऐसे सेटअप कर दिया उन्होंने। तो वहां पे उन्होंने आके देखा इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब कि कोई करंट नहीं आया। मतलब यहाँ पे मैग्नेट को रखने पे मैग्नेटिक फील्ड आया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आने के बाद भी यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। ओके, तो अब जैसे ही मान लो अगर मान नहीं आया तो वो क्या किए, इस मैग्नेट को हटा दिए। अब हटाने के लिए जब वो इसको यहाँ से यहाँ दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, मान लो इसको हटा रहे हैं, इधर से इधर लेके जा रहे हैं, तब उन्होंने देखा कि डिफ्लेक्ट हल्का सा, एकदम 1 सेकेंड से भी कम के लिए हल्का सा इधर डिफ्लेक्ट हुआ। ओके, मान लो ये इसको इधर लेके जा रहे थे, तो उन्होंने जैसे ही देखा यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है, वो फिर वापस उसको इधर लेके आ रहे हैं। जैसे ही उसको यहाँ लेके आए तो फिर वो देखे कि इधर वापस उल्टा साइड में एकदम 0.01 सेकेंड के लिए ये जो डिफ्लेक्शन हल्का सा हुआ। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि इस सर्किट में करंट है ना, कि यस मैम। सर्किट में थोड़ा सा करंट आया था, यानी गैल्वेनोमीटर तभी डिफ्लेक्ट करेगा जब सर्किट में थोड़ा सा भी करंट आएगा। तो उन्होंने देखा क्या, जब भी इसको दूर लेके जाते हैं तो ये हल्का सा 0.1 सेकेंड के लिए डिफ्लेक्ट करता है, जब भी इसको पास लाते हैं तो ये उल्टा साइड में डिफ्लेक्ट करता है, लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए। ओके, यस मैम। समझ में आया? यस मैम, आ गया। आया? सबको आया? सबको समझ में आया कि जब भी इस मैग्नेट को दूर या पास लेके जाते हैं तो फिर यहाँ पे एक छोटा सा ये गैल्वेनोमीटर हल्का सा डिफ्लेक्ट करता है, इधर या फिर उधर। अगर दूर लेके जाते हैं तो दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट करता है, पास लाते हैं तो दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट करता है। तो यानी क्या है कि मैग्नेट को जब भी इधर उधर करते हैं तो यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन आता है। तो उन्होंने क्या किया, इसको रिवर्स किया, इस मैग्नेट को एक ही जगह पे रख दिया। ओके, फिर सोचिए सोलेनॉइड और ये गैल्वेनोमीटर का जो पूरा सेटअप है, इसको एक काम के इसको इधर लेके गए। हाँ, तब भी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आया। वैसे फिर इसको वापस इधर लाए, फिर गैल्वेनोमीटर में इधर डिफ्लेक्शन हुआ दूसरे साइड में। तो पूरा कहने का इसका समरी क्या है कि जब भी यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा मूवमेंट हो रहा है, यानी कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज हो रहा है, यानी कि तुम यहाँ से इसको इधर लेके आ रहे हो या फिर इधर लेके आ रहे हो, तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। वैसे ही इसको उधर लेके जा रहे हो तो चेंज हो रहा है, इसको इधर लेके आ रहे हो तो चेंज हो रहा है। मान लो यहाँ पे इसको इधर से दूर लेके जा रहे हो तो थोड़ा कम हो रहा है, यानी तब भी चेंज हो रहा है। इसको पास लेके आ रहे हो तो थोड़ा बढ़ रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो यहाँ पे एक छोटा सा डिफ्लेक्शन दिख रहा है हमें। ओके, समझ में आया ये वाला? यस मैम। एवरीवन, समझ में आया सबको? यस मैम। ओके, जब भी मैग्नेटिक फील्ड में कुछ चेंज हो रहा है तब भी यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में एक छोटा सा डिफ्लेक्शन आ रहा है। सो वी कैन कंक्लूड दैट a change in magnetic field results in a slight deflection in the galvanometer. Okay,
सो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये मतलब कि इस मोशन की वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है और उस वजह से एक करंट या फिर करंट ऑब्लिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस पूरे प्रोसेस को। क्योंकि यहाँ पे देखो, तुमने यहाँ पे कहीं पे भी कोई बैटरी नहीं था, यहाँ पे कहीं पे भी कोई इलेक्ट्रिक सोर्स नहीं था, तुमने बस इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया और यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आया, मतलब कि करंट का डिफ्लेक्शन आया है ना। करंट मतलब वोल्टेज आया है कि नहीं। तो इस करंट आया, तो इसको कहते हैं हम लोग इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड मतलब करंट को लाना, इंड्यूस किया हमने करंट को। करंट था नहीं, करंट को हमने इंड्यूस किया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? द मोशन ऑफ अ मैग्नेट विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस इन द कॉइल and that produces induced current. This is called electromagnetic induction. इसको ऐसे भी कह सकते हैं, electromagnetic induction is the process of induction of current by changing the magnetic field by changing the motion of magnet or changing the motion of solenoid. Okay, ऐसे भी कह सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? यस मैम। ये वाला अच्छे से समझ लो, इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यस चारू। Ma'am, here we see that if we move the magnet, then the deflection is observed. But what if we move the circuit itself and we keep the Yes, magnet stationary? then also it will happen. That's what I discussed. Oh, you left for a while, no? It got No, I got disconnected. Okay. Yeah. It's okay. Then also it will, whenever there is a change in magnetic field, then only there will be an induction. See, if you move the magnetic field away, magnet away, then there will be a slight reduction in magnetic field. Like you are moving this away, so there will be a change. That is, if the value of earlier 6, then it will, if it goes away, then it will go to 5. Okay, so there is some change, 6 to 5, that is some lesser change. Okay, so there is a change. Now if you bring that back, there is an increase in magnetic field. Okay, so Okay. in that case, there is an induction, there is an induction of current, and so there will be an induced current. In the similar way, if you take this solenoid away from here, so there will be a reduction in magnetic field. Okay, but there will be a change. Reduction is still a change. So here the most important part is change. If there is a change in magnetic field, then there will be induction of current. So if you move this away, then also there will be a change. If you bring this side, then also there will be a change, that is, it will increase. So then also there will be a deflection. Okay. Okay. Understood? Any more doubts? Any more doubts? No No, मैम। ma'am. Okay. So let's go to the next part. Now here is most confusing part. Okay, let's here how does now here we are trying to find out how does the induction takes place. Okay, so first all of you silently read this from here to from this part, then I will explain you with this. मैम डन। Done. यस मैम डन। Okay, so what did you understand?
this one, this is in reference to this one, this figure, this is in reference to this figure. Yes ma'am. So tell me, what did you understand? मैम इसमें इसमें बोला है कि ये जो मतलब 2 कॉइल्स है ना, मतलब जो वायर के 2 कॉइल्स है, इनको सिलेंड्रिकल पेपर में रोल कर दो, ठीक है। हाँ। फिर एक कॉइल को बैटरी से कनेक्ट कर दो, और हाँ। एक जो दूसरी वाली ये कॉइल है वाला। उसको गैल्वेनोमीटर, हाँ, उस दूसरी वाली को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दो। अगर करंट पास होता है फर्स्ट वाली कॉइल से, जो हाँ। गैल्वेनोमीटर की नीडल है ना, वो सेकंड कॉइल की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। सेकेंड कॉइल की तरफ नहीं, ये बोल रहा है कि देखो यहाँ से जैसे करंट पास हुआ तो यहाँ पे एक तुमको एक छोटा सा डिफ्लेक्शन दिखेगा, है ना। यस मैम। ये यहाँ पे ये बोल रहा है, अब तुम वो सोचो यहाँ पे एक करंट जा रहा है इस कॉइल से, तो उसके लिए यहाँ पे क्यों डिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पे डिफ्लेक्शन मतलब क्या, कि यहाँ पे भी एक छोटा सा करंट है ना। तो Yes, ma'am. ये तो एक पेपर का रोल है, यानी कि नॉन कंडक्टर है ना। तो यहाँ का करंट यहाँ पे कैसे आया, कैसे आया सोचो। कैसे आएगा। मैग्नेट मोशन में। मैग्नेट मोशन में कहाँ है, इस मैं क्या बोल रही हूँ, ये वाला फिगर से बताओ, इस वाले फिगर से बताओ। यहाँ पे जब हम लोग इसको जस्ट ऑन कर रहे हैं, पहले इस सर्किट में 0 करंट था, 0। उसके बाद मान लो तुमने यहाँ पे 2 वोल्ट का एक बैटरी लगाया हुआ है, ठीक है। अब 0 to 2 वोल्ट गया है यहाँ पे, ओके। 0 से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 ऐसे करके गया, है ना, है कि नहीं। यस मैम। ये तो चेंज होते होते गया ना। यस मैम। अब 0.1 में अगर जितना करंट था सोचो, 0.2 में उतना ही था क्या, मैंने 0.1 में जितना मैग्नेटिक फील्ड हुआ। अब मान लो यहाँ पे मतलब कि ये जो प्लस ये एक के लिए एक मैग्नेटिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो आता है, इतना हमको पता है ना। यस मैम। करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आता है, तो हमने सोचो 0 पे एकदम 0 था, है ना। उसके बाद 0.1 वोल्ट की वजह से 0.1 वोल्ट का करंट आया यहाँ पे। अब 0.1 वोल्ट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आया, फिर 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 ऐसे करते करते 2 वोल्ट पे गया। अब ये बहुत ही कम टाइम में होता है ना, लेकिन इसको मान लो हम लोग थोड़ा मैग्नीफाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे इस वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, है ना। यस मैम। चेंज हुआ। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से यहाँ पे इंडक्शन हुआ, इंड्यूस्ड करंट आया, ओके। आया समझ में। यस मैम। आया ना, कि किसी को डाउट है। ओ मैम आ गया। आ गया समझ में। वैसे ही अगर Yes, यहाँ ma'am. पे जब हम लोग स्विच ऑफ करेंगे तो यहाँ पे 2 वोल्ट्स में जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मान लो यहाँ पे जितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, उसके बाद हम लोग उसके बाद 1.9 पे आ गए, थोड़ा कम बनने लगा, फिर 1.7 में आ गए, थोड़ा और कम बनने लगा, ऐसे करते करते 0 पे आ गए। तो इसमें भी चेंज हुआ, है ना, लेकिन नेगेटिव में Yes, चेंज हुआ, लेकिन बल्कि दूसरे डायरेक्शन में चेंज हुआ, इसलिए यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन होगा लेकिन उल्टे साइड में। यहाँ पे भी इंडक्शन होगा लेकिन उल्टे साइड में, ओके। यहाँ पे भी चेंज हुआ और इसलिए यहाँ पे भी उल्टे साइड में डिफ्लेक्शन हुआ। और इस वाले में सेम जैसे मैंने पहले वाला बताया कि इधर उधर करने से आगे पीछे करने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। ये वाला डायरेक्शन पहले ही तुमने समझ लिया था, ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम समझ में आया। यस मैम आ गया। सबको समझ में आया। Everyone understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. चलो. Now Faraday's law of electromagnetic induction. Okay. So Faraday ने मतलब कि जिन्होंने इस पूरे कॉन्सेप्ट का इन्वेंशन मतलब कि डिस्कवरी किया था, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को लेके 2 लॉज दिए थे, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये वाला मैथमेटिकल रिलेशन है, इसको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जान के रखना।
तुम्हारे नॉलेज के लिए अच्छा है। मोस्ट प्रोबेबली मीटिंग का टाइम खत्म हो जाएगा 4 मिनट्स बाद, फिर से एक बार क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इनकेस कट जाता है बीच में तो फिर ज्यादा टेंशन मत लेना, ओके। मेरा पहले से ऑन किया हुआ था। Faraday's law of electromagnetic induction क्या बोलता है कि instantaneous EMF induced in the circuit is directly proportional to the time rate of change of magnetic flux through the circuit। अब ये टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होता है ये बोलो। हाँ, किसी को पता है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? No, ma'am. एनीवन? मैग्नेटिक फ्लक्स ये आप लोग पढ़ेंगे आगे में, और है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ा है आपने? यस मैम। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर हम लोग ऐसे एक ये में करेंगे, जस्ट मिनट, अब यहाँ पे क्या है, मान लो का मैग्नेटिक फ्लक्स बता रहे थे ना, हाँ, ये मान लो एक गोल सा सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे एक मैग्नेट रख दिया तुमने। अब इस मैग्नेट का कुछ ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, ठीक है। अब ये बोलता है कि मान लो यहाँ पे तुमने एक छोटा सा सरफेस एरिया इसका कट किया, इस सरफेस एरिया में से जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाते हैं उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। यूनिट एरिया से जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलते हैं उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। मान लो यहाँ पे ऐसे गोल सा तुमने रख दिया। अब इसको पहले चार्ज के मामले में समझ लो तो मैग्नेटिक वाला, मान लो यहाँ पे तुमने एक प्लस चार्ज रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुमको कैसे कैसे ऐसे ऐसे टाइप का मिलेगा, ऐसे 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 टाइप का मिलेगा। अब ये क्या बोल रहा है कि वैसे ही यहाँ पे एक मैग्नेट को रख दो तो यहाँ पे इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। अब वैसे ही उसी जगह से यहाँ पे एक यूनिट एरिया 1x1 का एरिया, उसमें से पर यूनिट में जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगे उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके। तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स को, अभी मैग्नेटिक फ्लक्स को थोड़ा साइड में रखते हैं क्योंकि ये 11th में पढ़ेंगे। ये जो D5, इसको 5B से इसको नोटिफाई किया जाता है, इसको माने इसको डिनोट किया जाता है। तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो फ्लक्स है, जब भी ये फ्लक्स चेंज होगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंस्टेंटेनियस EMF। ये फ्लक्स जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ही ज्यादा इसमें E आएगा। E मतलब कि उतना ही ज्यादा इसमें EMF आएगा, उतना ही ज्यादा इसमें वोल्टेज आएगा। मतलब कि सीधे भाषा में अगर बोलना चाहें तो जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा उतना ज्यादा करंट आएगा, ठीक है। आया समझ में? Yes, ma'am. यस मैम। ये इन सबको, ये सब अगर समझ में नहीं आया तो आसान भाषा में फैराडेज लॉ ये बोलना चाहता है कि मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा चेंज होगा, ई यानी कि EMF उतना ज्यादा इंड्यूस होगा। EMF ज्यादा इंड्यूस होगा तो क्या होगा, करंट भी ज्यादा होगा, ओके। यस मैम। आया समझ में? यस मैम। ओके। तो उसके बाद आता है हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या बोला मैंने कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बिल्कुल फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जैसा, लेफ्ट हैंड रूल जैसा ही है, बस उसमें हमारा राइट हैंड का यूज होता है। FBI, that is if we use our right hand thumb to denote to राइट हैंड में अगर थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को राइट एंगल्स में अगर हम लोग ऐसे प्लेस करें तो फिर हमारा जो तो हमारा इंडेक्स फिंगर अगर B है और जो मिडिल फिंगर है वो अगर करंट I है तो फिर हमारा जो थंब है वो फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। यस मैम। हमेशा याद रखना राइट हैंड जो है वो इंड्यूस्ड करंट के लिए यूज होता है, ओके। लेफ्ट और राइट में कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट हमेशा इंड्यूस्ड करंट के लिए यूज होता है, ओके। इफ द थंब, फोर फिंगर